Hello everyone and welcome to the MedChem classes. So if you are aspiring to crack this exam, that is CSI Net Chemical Science, then this video is just for you. We will be discussing the effective strategies and tips that can be helped to prepare for the exam and boost your chances to success. I'll categorize in the following terms, like you have to first understand the syllabus. What syllabus they were asking for the CSI Net Chemical Science exam, then making a study plan, and then using the right study material. This will be the most important thing, or you can say the strategy behind to succeed in CSI Net Chemical Science exam. Okay, then practicing sample questions. This will another important term, that is practicing sample questions or practicing previous year questions or related to rank booster questions. If you are learning the theory or you are practicing theory only and you will not getting samples question or you will not practicing sample question, then you will not succeed in the exam. Okay, and always staying motivated. And finally the conclusion. So we will starting with the understanding the syllabus. Okay. Are you looking for an online coaching program for CSIR Net Chemical Science? Introducing MadChem classes, a premium online coaching run by IITians. With a high quality study material, experienced faculty, and a comprehensive course material, we ensure the best learning experience for our students. With our flexible, self-paced learning schedule, mock test, and affordable fee structure, learning is convenient and accessible to everyone. With a commitment to delivering the best result, our student has consistently topped the chart with an AIR 1 by S. So in the term understanding the syllabus, what you have to do, the first step for preparing for any exam, कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस जानना पड़ता है, उसको सिलेबस को अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है, अच्छे से सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस तरीके के कैटेगरी वाले टॉपिक्स को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. जैसे हमने ओवरव्यू वाला वीडियो आपके लिए बनाया था, तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो केमिकल साइंस जो है CSI नेट केमिकल साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है. 4 और 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इन विच आई इंक्लूडेड द बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो इनऑर्गेनिक. ओके, तो सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है. एंड टू हेल्प यू विद दिस वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो कि किस तरीके से सिलेबस को कैटेगराइज किया गया है. एंड मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री. ओके, तो आप बिल्कुल वो ओवरव्यू वाला वीडियो जो हम लोगों ने इसके पहले डाला था वो देख सकते हो कि किस तरीके से सिलेबस को 3 से 4 सब केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस अगर ज्यादा है तो आपको बिल्कुल सब टॉपिक्स में या फिर सब सेक्शंस करके उसको पढ़ना पड़ेगा. द मेजर कैटेगरी इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री. ओके, सेकंड, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस you have to make a study plan. This is very important. This plan should take into consideration the time you have available for the preparation. This is very important step कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए और उस टाइम को आप किस तरीके से मेजर यूटिलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई जॉब करता है, किसी का MSc चल रहा है, कोई स्टडी कर रहा है या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या वो जो फुल टाइम भी स्टडी कर रहा है, तो फुल टाइम स्टडी करने वाला भी अपने लिए एक टाइम स्ट्रेटेजी प्लान करने की जरूरत होती है कि किस तरीके से उसके पास एक मेजर टाइम गैप होता है, उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपको देखना है द टॉपिक्स यू नीड टू कवर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज लाइक दैट कि इफ यू आर सिलेबस को अगर आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहे हो और अगर आप आउट ऑफ सिलेबस की चीजें पढ़ रहे हो जिसके लिए मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये चीज का समझने को मतलब ये चीज आपको समझना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, कौन से टॉपिक से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज वाले होते हैं और सबसे पहले कौन से टॉपिक को कवर किया जाता है. ठीक है, देन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि आप किस चीज को, कौन से कॉन्सेप्ट को जल्दी से कैप्चर कर लेते हो, कौन से क्वेश्चंस को जल्दी से भूल जाते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है पर आपको वो याद नहीं रह रहा है, तो वो वीकनेस आप देखो. ठीक है, या फिर काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू द स्मॉलर मॉड्यूल्स एंड allocate the time for each of them, right?
Then remember to include time for revision and practicing sample questions. This is also very important कि इतना हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमको कुछ समय टेस्ट सीरीज के लिए भी निकालना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग भी करना है, कुछ क्वेश्चन नए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी समय निकालना है। इस तरीके से आपको आपका स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन, रिविजन, ये सारी चीज के लिए आप अलग अलग टाइम दे सको, राइट? देन थर्ड, यूजिंग द राइट स्टडी मटेरियल। यहां पर आ जाता है मेजर क्वेश्चन कि कौन सा स्टडी मटेरियल हम फॉलो करें, राइट? कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको जब ओवरव्यू की जब वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि स्टडी मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बुक्स भी हमारे सबसे पहले ध्यान में आती है कि बुक्स हमें पढ़नी है, कौन सी बुक्स हमें पढ़ना है, तो आप बुक्स भी एज अ स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है? या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग्स लगा सकते हो, मॉक टेस्ट ले सकते हो। टू प्रिपेयर इफेक्टिवली यू नीड टू चूज द राइट स्टडी मटेरियल. So there are many books are there, online courses are there, offline coaching classes are there available that will be help you to prepare this kind of exam, that is CSI and NET Chemical Science. Okay, you should use study material that is updated. सबसे important बात तो ये आ जाती है कि study material ऐसा choose करना है कि जो updated हो, राइट? कि अगर पता चले कि कुछ कोचिंग्स में ऐसा चल रहा है कि बहुत पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीटेटिवली वो पढ़ा रहे हैं, पहले से ही प्रिंट और टाइप करके रखे हैं, लेकिन जो अपडेटेड क्वेश्चंस है उसमें ऐड नहीं है, जो अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो उसमें ऐड नहीं है, तो ये आपको दिक्कत दे जाएगा। तो आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल यूज करना है जो रिलेवेंट हो, आपके यूज में आए, ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इजी टू अंडरस्टैंड। काफी सारी बुक खरीद ली पर बुक का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, तो नोट्स ऐसे होने चाहिए, स्टडी मटेरियल ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ में आ सके ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से ग्रैब कर सको, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स, ऑल्सो ऑनलाइन forums to discuss the topic and clarify your doubts. There are many things to choose the right study material, but यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया में बिल्कुल कीमो सिलेक्टिवली चूज करना है कि स्पेसिफिक अपडेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से यू हैव टू चूज द स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर मेनी थिंग्स कि जिस तरीके से आप चूज कर सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए, अपडेटेड, रिलेवेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, तो अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 की, तो बिफोर गोइंग टू द सेक्शन नंबर 4 आई विल सजेस्ट हियर कि जब भी हम स्टडी मटेरियल चूज करते हैं तो अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे ना तो पूरा साल बीत जाएगा, तब भी बुक खत्म नहीं होती है, उतने अच्छे तरीके से दिमाग में जाती नहीं है और सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज. और हमें तो 6 to 8 मंथ में सिलेबस कवर करना है, राइट? और हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चंस भी हमें निकालना है, तो बुक से पढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता. हाँ, अगर आप रिसर्च के लिए पढ़ रहे हो, नेट क्वालिफाइड करने के बाद बहुत डीप में पढ़ना है, उसके लिए बुक्स यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड. ओके, तब जाके आप बुक्स, आई विल सजेस्ट कि बुक्स यूज करो. लेकिन आपको एक ही जगह स्टडी मटेरियल वो चाहिए जो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, अपडेटेड हो, सिलेबस तक ही रहे, आउट ऑफ सिलेबस ना जाए, क्योंकि बुक्स तो पूरी तरीके से बनी हुई होती है ना, तो जो सिलेबस तक ही रहे, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेडकेम क्लासेस का कोर्स. मेडकेम क्लासेस का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको बिल्कुल ऑफिस नंबर पर कॉल कर देखना है और सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी. मेडकेम क्लासेस का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट फ्रेंडली आपके लिए बन रहा है, ठीक है? कॉस्ट फ्रेंडली के अलावा आपको हर एक टॉपिक पे क्या मिल रहा है, टॉपिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके हर टॉपिक्स का रिवीजन क्लासेस मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं और व्हाट नॉट. ओके, वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस लेटर. देन यहाँ पर सेक्शन 4 में प्रैक्टिसिंग द सैंपल क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया कि सैंपल क्वेश्चंस कहाँ से उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से उठाए, तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी मिल जाते हैं, बुक्स से भी मिल जाते हैं, ठीक है? But you have to remember to time yourself while practicing and work on your speed and accuracy. This is very important कि बुक से एक क्वेश्चन निकाल रहे हो, टाइम बहुत जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अगर यहाँ पर हम बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक्स एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो CSI नेट केमिकल साइंस के लिए, तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो आप
स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो नासीपुरी एंड पीएस कलसी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज कर सकते हो पाविया एंड क्लेडन, कैरोइथर्स एंड माइकल नार्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और गुड बुक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की, तो यहाँ पर हुई, मिसलर एंड टार, अजय कुमार, both for coordination and organometallics. B.D. Gupta is also very good for organometallics. There are other books like J.D. Lee. This is very good for main group. Greenwood, Purcell and Cords, and Housecraft. Okay. Similarly, for physical, there are many books are there in which I categorize most important one, that is Rastogi and Mishra. Okay. Atkins. Then Fundamental of Molecular Spectroscopy by Benwell. Okay. Then F.A. Cotton for group theory, Principles of Physical Chemistry, Puri Sharma Pathania and K.L. Kapoor. K.L. Kapoor के according to the topics काफी ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होते हैं. Okay, तो most importantly when you are, if I am talking about practicing sample questions, and after that the last one is staying motivated. Right. See, preparing for any exam and most importantly CSIR NET exam can be very stressful and challenging. बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, हर चीज को प्रैक्टिसिंग करने के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कम होता है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती है. बट हमेशा हमें मोटिवेटेड रहना है बिकॉज वी हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, और वो हमें ही करना है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिवली सोचना है. इसीलिए यू कैन क्रिएट अ स्टडी ग्रुप लाइक अ माइंडेड इंडिविजुअल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई डिप्रेस्ड इंसान के साथ स्टडी ग्रुप बनाते हो और वो भी डीमोरलाइज्ड ही बात करता है तो आप कभी मोटिवेटेड नहीं रहोगे. इसीलिए एक माइंडेड इंडिविजुअल के साथ एक ग्रुप बनाकर डिस्कशन करने से, रेगुलर टाइम इंटरवल्स, रेगुलर ब्रेक लेने से, या फिर एक डिस्कशन स्टडी प्लान बनाकर काम करने से हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे. ठीक है. और एक छोटे छोटे रिवार्ड्स खुद को दिया करो कि आज हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, जीओसी से इंटरमीडिएट्स तक पूरा पढ़ लिया, असाइनमेंट सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ठीक है. तो ये मैंने इतना टारगेट रखा था एंड विद द टाइम ये टारगेट मैंने अगर कंप्लीट कर लिया है तो आज मैं अपने आप को ट्रीट दूंगा या मैं कुछ रिवार्ड दूंगा. तो इस तरीके से आप अपने ही आप में पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दोगे. जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स बहुत अच्छी होती है, हर एक क्वेश्चन वहां से बिल्कुल कॉपी पेस्ट अगर आता है तो ये भी चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी क्लासेस जो इन्हीं बुक्स को पढ़कर एक अपडेटेड रिलेवेंट आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं. ठीक है. वो वीडियो लेक्चर्स बनाते वक्त वो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस में क्या इंक्लूड किया गया है, क्या एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है. और आपके लिए बहुत कम कॉस्ट में एक स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट होगा बुक्स पढ़ने के कंपैरिजन में. रेफरेंस बुक तो मैंने आपको बता दी, अगर आपके पास टाइम परसिस्ट होता है तो आप बिल्कुल बुक्स के साथ पढ़िए, लेकिन बुक्स के अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक ही बार में मिलना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन अप टू दिस ईयर आपको मिलना चाहिए. ठीक है. उसके साथ टेस्ट आपको पता होनी चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं करोगे थियोरी बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा. तो CSIR NET केमिकल साइंस एग्जाम with the MATCAM classes run by the IITians by 3 sir, that is Vimal sir, Pavan sir and Tej sir, इन्होंने बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिटी स्टडी मटेरियल बनाया है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टडी मटेरियल पढ़ने का फायदा है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट टू एडवांस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो. हर एक टॉपिक का यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद द PDF सॉल्यूशन, रैंक बूस्टर्स क्वेश्चन है विद द PDF सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिल रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक एक्सपीरियंस फैकल्टीज नहीं होती है कोई भी सिस्टम में क्वेश्चंस बनाना, किस तरीके से डिजाइन करना, या फिर अगर आप बोल सकते हो कि स्टडी मटेरियल पर किस तरीके से हम स्टडी मटेरियल राइट चूज कर सकते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैटकेम क्लासेस हमेशा अपनी फीस अफोर्डेबल रखता है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसका ज्यादा फायदा उठा सके इन ऑर्डर टू क्रैक द CSIR NET एग्जाम. ओके. एंड यू गॉट द कंप्लीट सिलेबस ऑन वीडियो लेक्चर्स. हर एक टॉपिक में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है. बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं कि ये बुक से क्या पढ़े, वो बुक से क्या पढ़े. बुक से पढ़ने बैठ जाओगे सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है. ठीक है.
उसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है विद डिटेल सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, 15 प्लस टेस्ट आपके लिए डिजाइन की गई है, डेली डाउट सेशंस होते हैं विद द बेस्ट डाउट फैकल्टीज, वीकेंड में लाइव डाउट क्लासेस होती है, ठीक है, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन जो डीमोरलाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं डेली वीकेंडली इन द लाइव डाउट क्लासेस, and topic wise revision classes of each topic is available, right? So finally this is the things ki when you are making the strategies for the CSI net chemical science, you have to first understand the syllabus, right? Then you have to making a study plan ki how you study, how much time you give to each topic, right? Then third is using the right study material. Then I will suggest go for medchem classes because everything is very good in the medchem classes, easy to understand the syllabus, experienced faculties, very high quality video lectures, detailed video solutions of each topic, previous year question solution and rank booster question solution with the test series. Okay, हर बुक पढ़कर फैकल्टीज ने एवरी बुक पढ़कर हर एक टॉपिक पर सब चीज कवर किया, यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक, ओके। और फिर भी अगर के पास टाइम बचता है तो बिल्कुल आपको मैंने रेफरेंस बुक बताया रखी है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हो। And after choosing the right study material, you go for practicing the sample question. This is also very important. You need to practice a lot of question, including the previous year question, in order to boost your confidence. Then staying motivated, and weak people always dare to stay motivated you for crack this exam. And finally the conclusion is practicing more and more questions, be positive, everything will go positive if you are self-determined and hardworking. So that's it for today's video on preparation strategies for CSI Net Chemical Science 2020. We hope that these strategies will help you prepare effectively and boost your chance of success. So that's it for tomorrow. That's it for today's video. And remember my words and remember one thing: consistent and disciplined preparation is a key to achieve success in any exam. So be consistent and disciplined. It will automatically make you hardworking and crack the exam. Very good luck and all the best. Thank you so much.